how a skincare brand is built in India today. अभी वर इन जर्मनी एंड वहाँ पे मुझे कभी कोई भी इंडियन ब्रांड दिखा ही नहीं। हम ही बनाते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, हमारे ही प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। So ऐसा कोई product था is really missing in India at that time. People are so mad for serums. When it comes to skincare, na basics are the most important thing. You should focus on a very good gentle cleanser, ceramide based moisturizer, broad spectrum sunscreen. You started with 8 to 10 lakh. इसके अलावा भी और कुछ इन्वेस्टमेंट है जो मुझे कंसिडर करनी चाहिए? मेन जो आपका लगेगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बनाने में ही लगेगा। अगर थर्ड पार्टी में जाना है तो मैं ये सब देखूं। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चेक कर सकते हो, अपडेटेड है, कई तो ऐसे ही चलते हैं। मैं भी बहुत स्किन केयर यूज करती हूँ, मुझे ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए कहाँ से आ रहा है स्किन केयर। I went to almost 4 to 5 big third-party manufacturers who used to make for big giants in India. ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड। उसके जो प्रोडक्ट थे, जो एंड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बना रहे थे तो जगह नहीं थी रखने की, दे केप्ट इट नियर वॉश बेसिन। Is it the right time for someone to start? Do they really need to have a background of a pharmacist or a chemist? I personally would love if someone from science background, because we want people like them जो सही चीज़ लोगों को दे। इंडिया में अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आता ही नहीं है कॉस्मेटिक साइंस किसी को। स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं, साउथ में काफी देखे हैं मैंने, ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने किचन से ही बनाए हैं। मैं किचन में कुछ बना रहा हूँ, आप भी सेम चीज़ किचन में बना रहे हो, कैन यू गारंटी कि द लेवल ऑफ इंग्रेडिएंट्स विल बी द सेम इन दैट? Hormonal acne, what are the worst foods? ऑयली स्टफ इन द फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, शुगर से आपको दूर रहना चाहिए। Fragrances also messing around with hormone. फ्रेग्रेंस कैंडल्स होते हैं, वो घर पे रूम पे लोग लगा लेते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। I have actually used keys also for a very long time. Usually like a small tub comes for 2200, 2300. There are a lot of women out there who spend hard earned money on skincare. क्यों भाई, हीरे मोती डाल रहे हो, उसमें क्या डाल रहे हो? अ गुड सेरामाइड मॉइस्चराइजर जिसका एक प्राइस जो होना चाहिए, विच आई फील शुड बी अराउंड 500 to 700 रुपीज के बीच में। What was your packaging strategy? ऐसा ट्यूब में क्यों बनाया? अगर आपने देखा हो, मोस्टली फार्मा की क्रीम्स आती हैं वो एल्यूमिनियम में आती हैं। उसका रीज़न ये बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू फार्मा क्रीम्स पैकेजिंग। ऑलमोस्ट एवरी टाइम, चाहे नायका ने कनेक्ट किया हो या तीरा ने किया हो या किसी ने भी कनेक्ट किया हो, दे सेड कि वी सॉ एन एल्यूमिनियम ट्यूब एड। Your thoughts on using quick commerce for skincare? उनके ना डार्क स्टोर्स है बहुत सारे। व्हाट हैपेंस कि दे आज फॉर लॉट ऑफ SKUs, 10,000 पीस का ऑर्डर ले रहा है एंड द पेमेंट विल कम आफ्टर 45 डेज। दैट टू जो सेल हुए उनका देंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है इसमें। If you want us to keep bringing such amazing entrepreneurial journeys on this platform, please subscribe to our channel, The Sonika Mata Show today. Thank you, Dr. Rahul, for coming here, taking out time. The intent of today's podcast is to make a new entrepreneur understand that how a skincare brand is built in India today. You've created an amazing brand, Formula RX, and you do create your own formulations. You understand skincare in depth, and not just that, but you've also created a brand which has like say 50,000 following today. It is a brand that a lot of people are really talking about. You've gained trust in a span of 3 to 4 years, and you have an interesting journey, which is commendable that you left a well-paying job and you started something from the scratch. So what inspired you to start? What did you see as a gap in the market? What was that gut instinct? First of all, thank you very much for inviting me in your podcast. See, as we were discussing previously, so I'll just give you a brief background about myself and my wife, who is the founder of the brand as well. Yeah. So I have done my PhD in pharma from Germany, and my wife has done a PhD in chemistry from Germany as well. So we both met there. She was 1 year junior to me. Okay, great. So there we used to do a lot of high level of research. So we used to do ingredients level research. We used to work in the labs, and the labs were having collaborations with the big pharma and chemical giants. Okay. So anything new that the chemical companies wanted to make, they used to collaborate with the labs, and we were the scientists who used to make these new things for them. Okay. Then comes the clinical trials and all other things. और ये जो आपका कोर्स था जर्मनी में, like will you be able to tell me a little about it? So मेरा जो प्रोजेक्ट था, it was basically a combination of neuroscience and pharma. तो उसमें मैं जो ड्रग्स होते थे, जो न्यू इंग्रेडिएंट्स होते थे, उनकी टेस्टिंग करता था मैं न्यूरोनल सेल्स पे। तो ब्रेन सेल्स पे हमारा काम होता था। सिंगल सेल पे क्या मतलब, वी यूज्ड टू डू पैच टेस्ट, पैच क्लैम्प टेस्ट। इट्स नॉट द पैच टेस्ट ऑफ द स्किन, पैच क्लैम्प। सो बेसिकली यू आर पैचिंग वेरी स्मॉल टाइनी माइक्रोस्कोपिक नीडल inside the neuron and checking the activity of the neuron, and then seeing what happens when you add an ingredient from outside. Is there any difference in the activity? जो भी आप चाहते हो वो हो रहा है नहीं हो रहा उसमें।
बहुत ही डेलिकेट लेवल का एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग करते थे। और जो मेरी वाइफ़ हैं वहाँ पे, वो करती थी इंग्रीडिएंट्स की रिसर्च। सो बेसिकली वो इंग्रीडिएंट्स की रिसर्च करती थी और मेरा काम होता था टेस्टिंग करने का कि ये काम कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, इन विट्रो, इन विवो, व्हाट अ क्लिनिकल। ग्रेट टीम। हाँ, वो सब पूरा ट्रायल्स वगैरह का होता हाँ। था। सो उस लेवल का हमारा वहाँ काम होता था। तो एज़ आई वाज़ सेइंग कि शी लव्स स्किन केयर और ये सब। तो वी आई यूज्ड टू गो विद हर इन द शॉप्स एंड वहाँ पे मुझे कभी कोई भी इंडियन ब्रांड दिखा ही नहीं। जब आप बट जर्मनी में थे। हाँ, व्हेन आई वाज़ सो वी वर इन जर्मनी फॉर ऑलमोस्ट 8 टू 9 ईयर्स। ओके। तो मुझे तो नहीं दिखा जहाँ मैं था। तो हम्म। आई यूज्ड टू आस्क कौन शॉपकीपर्स से के। ईयर की बात है ये? 2017 में मैं मतलब कोर्स उससे पहले से मैं यूरोप में हूँ। बट द थिंग इज़ कि उस समय मेरा और जो वाइफ़ है वी एक्चुअली गॉट मैरिड इन अराउंड दैट टाइम। सो फिर साथ में जाना तो ठीक है। हाँ। नहीं, नहीं, ठीक है। नो, नो, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू योर पर्सनल, बट चलो आई एम ट्राइंग टू लाइक व्हाई आई एम टॉकिंग दिस? बिकॉज़ मैं भी बहुत स्किन केयर यूज़ करती हूँ। मुझे ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कहाँ से आ रहा है स्किन केयर, हू इज़ एग्ज़ैक्टली, मेकिंग इट, एंड आई नो एग्ज़ैक्टली। दैट मैं आपको whenever बताता we हूँ। speak about skincare, you tell me a lot about the facts, and I get surprised every time. लॉरियल किसने स्टार्ट किया था? I have no idea. लॉरियल वाज़ स्टार्टेड बाय अ फार्मासिस्ट एंड अ Okay. केमिस्ट, Hmm. राइट? श्वार्ज़कॉफ किसने किया है? श्वार्ज़कॉफ भी पता ही होगा आपको। Yeah. केमिस्ट, फार्मासिस्ट। तो वो इसलिए तो रूल कर रहे हैं वर्ल्ड को बिकॉज़ साइंटिस्ट ने उन्हें चालू किया है। Okay. अभी इंडिया में तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना वो वाला। सो मेरा यही है कि सो बेसिकली वहाँ पे जब मैं था तो आई आस्क्ड देम कि भाई इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं रखते हो? Yes. बिकॉज़ इंडिया तो ब्रांड्स भरे पड़े हैं। Hmm. बट दे सेड दैट इंडियन ब्रांड्स डू नॉट क्वालिफाई, ईयू स्टैंडर्ड में हम लोग फेल Okay. कर जाते हैं। Hmm. इसलिए मतलब इंडियन ब्रांड्स को वो रखते ही नहीं है। Hmm. सो वहाँ ये चीज़ मुझे बुरी लगी। मैंने बोला यार हम ही बनाते हैं इंटरनेशनल Right. ब्रांड्स के लिए चीज़ें और हमारे ही प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे बिकॉज़ वी आर मेकिंग फॉर देम। True. सो वो एक मुझे क्लिक करा एंड आई आस्क्ड माय वाइफ यार ये हम लोग खुद के लिए क्यों नहीं बनाते? व्हाई कांट वी मेक अ ब्रांड फ्रॉम इंडिया दैट कैन रिप्रेजेंट इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? Sure. तो वो क्लिक हुआ हमें। तो एज़ आई वाज़ टेलिंग यू कि हम लोग का तो वेल सेटल्ड लाइफ था, वो हमने छोड़ा। जो बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है बाय द वे, लॉजिक से नहीं चलता बिज़नेस। अगर यू हैव टू स्टार्ट अ बिज़नेस यू हैव टू टेक अ रिस्क। लेकिन रिस्क तभी लेना व्हेन यू नो कि आपके स्किल में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। वी न्यू कि वी हैव डन पीएचडीज़ इन दीज़ मतलब फार्मा केमिस्ट्री में एंड वी नो कि हम जो कर रहे हैं इसमें हमें कोई बीट नहीं कर सकता। Hmm. अगर हमें ये ज़रा सा भी शक होता हम छोड़ के नहीं आते। Hmm. सो दैट वाज़ द ओनली रीज़न कि हमने इतना बड़ा रिस्क लिया, हम आए। तो इफ़ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट ना बाबा, वो ट्रेंड की वजह से ना करे, अपने पहले स्किल्स को शार्प करे। Yeah. जब वो पॉइंट आ जाए आपको लगे यार इसमें मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, तब आप स्टार्ट करो। Okay. नहीं तो क्या होता है, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेल्स, क्योंकि ट्रेंड के बेस पे ज़्यादा लोग स्टार्टअप करना शुरू करते हैं, उसने किया मैं भी करता हूँ। वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो और दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इंडिया आया तो 2019 में वी केम बैक टू इंडिया, मिड ऑफ 2019। इट टुक अस 2 इयर्स टू लॉन्च द ब्रांड। Okay. मतलब 2021, मिड 2021 में ब्रांड लॉन्च हुआ। ठीक है, 2 इयर्स से थोड़ा सा ज़्यादा। अब आप ये सोचो अगर मेरा मोटिवेशन ये होता कि मुझे बिजनेस करना है बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी, क्या Yeah. मैं सर्वाइव कर पाता? बिकॉज आई डो नॉट कम फ्रॉम अ वेल रिनाउंड बैकग्राउंड। मेरे फादर इज़ फ्रॉम नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, मैं मॉम भी एकदम नॉर्मल जॉब करती हैं। तो ऐसा कोई फैमिली में भी कोई बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का, ना कोई एमबीए है, और जितने फ्रेंड्स थे वो सारे तो बाहर ही सेटल्ड हैं और सारे साइंटिस्ट हैं, उनको वैसे ही नहीं पता मार्केटिंग क्या होती है। तो हमें कुछ पता नहीं था। तो अगर मेरा ये मोटिव होता कि मुझे पैसा कमाना है, 2 साल तक मैं कर ही नहीं पाता। Hmm. क्योंकि आते ही लॉकडाउन हो गया, 1 साल तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाए हम लोग। Okay. तो हमारा मोटिवेशन था कि यार हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर सके। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट। Yeah. Yeah. द प्रॉब्लम इज़ व्हाट हैपेंस ना नाउअडेज़, यूथ क्या करते हैं, इसमें पैसा बन जाएगा करते हैं। बट दैट शुड नॉट बी द राइट मोटिवेशन। Hmm. फिर आप शायद बना लोगे, शायद नहीं बनाओगे। इंडिया में 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल, है Hmm. ना? Yeah. Yeah. उसका ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने क्यों फेल हो रहे हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो भी आजकल थोड़ा सा सपोर्टिव हो गया, बट उतना भी सपोर्टिव अभी नहीं हुआ जितना यूरोप के सिस्टम सपोर्टिव है फॉर स्टार्टअप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका मोटिवेशन ही पैसा है, आप नहीं कर पाओगे। तो Yeah. डिसिप्लिन, लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन इज़ अ वेरी रॉन्ग टर्म, Hmm. डिसिप्लिन इज़ द राइट टर्म। Yeah. मोटिवेशन आपको 2 दिन में चला जाएगा। आप जिम जब जॉइन करते हो 2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, थर्ड दिन चले जाते हो। डिसिप्लिन मीन्स जिस दिन मन नहीं भी कर रहा ना, करना है, वो जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, उस दिन आप करोगे। सो ऐसा कोई प्रोडक्ट था पर्टिकुलर जो आपको लगा इज रियली मिसिंग इन इंडिया एट एग्जैक्टली, दैट टाइम? एग्जैक्टली। क्या सो गैप देखा सो सो आपने? सो बेसिकली व्हेन वी केम बैक टू इंडिया, बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, तो एज आई सेड ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, जॉब भी छोड़ दी। और घर वालों ने तो वैसे ही नाराज़ थे कि तुम आ गए यार सब कुछ छोड़ छाड़ के।
तो बट वी स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम हैंडल एंड वी यूज टू अच्छा। या एट दैट टाइम इन लॉकडाउन बिकॉज कुछ था नहीं करने को हाँ। बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग हाँ। तो एंड साइंस के अलावा कुछ आता भी नहीं है, सो वी थॉट कि चलो लेट्स डिस्कस द साइंस ऑफ नॉट स्किन केयर, हाँ। इंग्रेडिएंट साइंस। स्किन केयर हाँ। साइंस तो बहुत बेसिक होती है, इंग्रेडिएंट लेवल की साइंस वी Yes. यूज टू डिस्कस एंड लॉट ऑफ डर्मैट्स एंड साइंटिस्ट they started following, lot of brand founders they started following that page। और उसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि क्या नया कॉस्मेटिक साइंस में क्या हो रहा है आजकल नया, व्हाट न्यू थिंग्स आर हैपनिंग। तो उसमें ना बहुत सारे इंडियन ऑडियंस भी दे स्टार्टेड फॉलोइंग हु हैव इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स एंड वी केम टू नो दैट द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया was that first of all no one was knowing about what type of स्किन केयर दे शुड डू। वो बस ट्रेंड की वजह इसने कोई आज भी नहीं ब्रांड पता है। आज भी नहीं पता है, वो सही हम्म। है। और उसकी वजह से ब्रांड्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स। Yeah. अब हो क्या रहा है उस समय सिरम्स, इवन हम्म। टुडे पीपल आर सो मैड फॉर सिरम्स। So Yeah. at that time specifically there were some brands who were selling serums की hyaluronic acid serum, niacinamide serum, ये serum And वो very serum। expensive also, हाँ, right? the problem is कि no one was taking care about the basics when it comes to skincare na, basics are the most important thing। You should focus on a very good gentle cleanser, a very good ceramide based moisturizer and a very good broad spectrum sunscreen। इसे कोई बात नहीं कर रहा था उस समय, सीरम लगा लो, एक्ने हुआ सीरम लगा लो, पिगमेंटेशन हुआ सीरम लगा लो। बट आपका जो स्किन बैरियर है दैट इज़ योर आउटर मोस्ट लेयर, हम्म। अगर उसे ही आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो वो हार्म करेगी वो। Yeah. क्योंकि आपका डैमेज्ड अगर स्किन बैरियर दैट इज़ योर आउटर मोस्ट लेयर, अगर आप उसमें सीरम लगाओगे ना इट विल डू मोर हार्म देन गुड। Okay. बट वो लोगों को नहीं पता था। सो पीपल और लोगों का भी क्या है ना कि एक दिन के अंदर एक रात में मेरा इशू सॉर्ट आउट हो जाए, वो एक Yeah. बिहेवियर भी लोगों का है। तो उसका जो है जो कॉस्मेटिक कंपनीज थी दे यूज टू टेक फ़ायदा कि भाई चलो हाँ, and ये also bringing हाँ trends, ट्रेंड्स वो सब। different sort of trends. तो हमने ये चीज़ देखी एंड पीपल वर सेइंग यार हमारा इशू सॉल्व ही नहीं हो रहा है इससे, में सॉल्व होगा कैसे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में 90% टू 95% ऑफ द पीपल दे हैव सेंसिटिव स्किन एंड द रीज़न फॉर सेंसिटिव स्किन इज ईदर दे आर नॉट डूइंग स्किन केयर और दे आर डूइंग रॉन्ग स्किन केयर। ठीक है, जो नई स्किन केयर कर रहा है ऑफकोर्स उसका तो हो गई, क्योंकि एक तो स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, पोल्यूशन है, प्लस यूवी है, प्लस आपने वैसे भी स्किन केयर कुछ नहीं कर रहे हो, मुंह साबुन से धो रहे हैं। Yeah. मैनी पीपल इवन टुडे दे वॉश देयर फेस विद सोप, So, राइट। yes. एंड देन या तो जो स्किन केयर कर रहे हैं वो ट्रेंड के चक्कर में 10-10 प्रोडक्ट्स मुंह पे लगा दे रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं विच इज़ इनकरेक्ट, और उससे आपका स्किन और डैमेज हो रहा है। देन दे आर गोइंग टू डर्मैट्स, फिर डर्मैट से भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया एंड कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे नहीं रहा था, और वो प्रोडक्ट्स ही नहीं थे, नॉलेज क्या देगा। Yeah. सो इन 2021 आफ्टर अ बिग फाइट, क्योंकि एक इसके बाद हुआ क्या कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो वी थॉट कि चलो फॉर्मुलेशन तो वी हैव मेड इन यूरोप, वी मेड द फॉर्मुलेशन इन यूरोप। Okay. बट द थिंग इज बिकॉज फॉर मेकिंग formulation at a bigger scale you need a manufacturing setup and that requires some kind of investment, right? Yes, yes. सो वी थॉट यार इतना तो बड़ा फिर हम तो रिस्क में आ जाएंगे, जो छोटा मोटा उसको भी अगर डाल दिया तो वी थॉट कि लेट्स गो टू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स। भाई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स का इंडिया में हाल है ख़राब, नो वन नोज़ व्हाट दे आर डूइंग। वही उन्होंने 10 प्रोडक्ट्स एक बना के रखे हैं 10 साल पहले, वाइट लेबलिंग हो रही है क्योंकि दे आर मेकिंग द सेम फॉर्मुलेशंस फॉर डिफरेंट ब्रांड, सिर्फ लेबल चेंज हो रहा है। Yeah. समझ रहे हो आप, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, इससे ज़्यादा उन्हें नहीं आता है, ना ही वो करते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड आई वेंट टू ऑलमोस्ट 4 to 5 बिग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हु यूज टू मेक फॉर बिग बिग जायंट्स इन इंडिया, Okay. राइट। सो उसने ये बोला मुझे, आई स्टिल रिमेंबर दिस, कि सर आप कहाँ इनोवेशन में पड़े हुए हो, आप ये इंडिया है, यहाँ पे आप गंजे को कंगी बेचो। ये डायलॉग था उसका। Okay. एंड आई वाज शाउट कि यार क्योंकि हमारी ट्रेनिंग 10 years तक यूरोप में हुई है तो हमें तो एकदम डिसिप्लिन, हाँ इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, पर इंडिया इज़ टोटली डिफरेंट बॉल गेम आउट हो गया था इन इंडिया। तो मैंने बोला बॉस ये तो नहीं हो सकता, एंड तो फिर मैं दूसरे के पास गया एंड दे बट द अदर मैन्युफैक्चरर्स दे वर अनेबल टू रेप्लिकेट इट। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, आप लैब लेवल से मैन्युफैक्चरिंग लेवल के लिए भी एक साइंस होती है, आप ये नहीं कि जैसा है मल्टीप्लाई कर दिया हो गया, अच्छा। उसके लिए भी आपको दिमाग चाहिए। तो स्टेबल नहीं कर पा रही थी हमारे फॉर्मुलेशंस को बेसिकली वो। Okay. तो हमने थक हार के हमने बोला यार, और जीएमपी भी नहीं था उनका, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो होती है, क्लीनलीनेस एंड ऑल, आई मीन दे वर मेकिंग बेबी प्रोडक्ट्स। Yeah. और मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड, समझ जाएंगे लोग। उसके जो प्रोडक्ट थे, जो एंड प्रोडक्ट होता है जो फीलिंग के लिए जाता है, क्योंकि बहुत सारे बना रहे थे तो जगह नहीं थी रखने की, दे केप्ट इट नियर वॉश बेसिन। Oh my तो अब God. आप ये सोचो कि कोई मतलब लेवल ऑफ कंटेमिनेशन किस किस लेवल का हो रहा होगा उसमें, बट चल रहा है इंडिया में। तो जीएमपी भी फॉलो नहीं हो रहा था।
तो फिर देन वी डिसाइडेड यार वी हैव टू इन्वेस्ट अवर ओन सेविंग्स जो भी हमारी थी, Okay. बट दैट वाज अ रिस्क क्योंकि अगर चला चला नहीं चला तो ख़त्म फिर। बट वी टुक दैट रिस्क बिकॉज इतना हम अपने प्रोफेशन के साथ वी कांट चीट। एज आई सेड वी आर साइंटिस्ट, वी आर नॉट मार्केटर्स। Right. और हम आए थे अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, बनाएगा अगर बनेगा ही वो जो सबके लिए बना रहा है वही हमारा बनेगा तो कोई लॉजिक नहीं बना। Post COVID, I saw a boom in skincare in Yes, India. absolutely, yes. And I saw a lot of, like, I've been seeing lately a lot of celebrity owned skincare too. And of course, there is great marketing and everything, but the great part of internet is also that सिर्फ मीरा कपूर has this openly Yeah, saying yeah, this, yeah, ठीक है? yes. She has a skincare brand. Like people are literally commenting कि वीडियो में आप यूज भी नहीं कर रहे हो और आप बता रहे हो कि दिस इज ग्रेट एंड एवरीथिंग एंड देन you literally see that next few videos that she's really trying to show. So I mean, people today are not silly, they're not mad. Exactly. उनको सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, and in India people are exposing a lot of things like about food, about skincare too. So it's interesting, but अगेन आई वांटेड टू आस्क कि अगर किसी को आज एक नया स्किन केयर ब्रांड खोलना है, वो भी इतने सैचुरेटेड मार्केट में, बिकॉज कोविड में इतने ब्रांड्स आ चुके हैं और पहले बहुत लिमिटेड ब्रांड्स ही होते थे. नाउ आई आल्सो यूज अ लॉट ऑफ होम ग्रोन इंडियन ब्रांड्स. सो is it the right time for someone to start, and do they really need to have a background of a pharmacist or a chemist or maybe an ayurvedic background? आयुर्वेदा का तो आई कांट से मच बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट Sure, साइंस। sure. उसका तो खैर मैं कमेंट नहीं कर सकता। वी इन्वेस्टेड एंड वी आर दी ओनली ब्रांड एट द मोमेंट हु डू इन हाउस R&D एंड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेन द क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स फॉर इनोवेशन एंड ऑल। बट अगर आपको एज द वे यू सेड कि किसी को अगर खोलना है अपना कॉस्मेटिक का कंपनी, स्किन केयर कंपनी, तो सी आई वुड लव इफ यू आर हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मा बिकॉज वी शुड कम इन द फ्रंट यार। हम लोग बैक फुट में क्यों खेल रहे हैं? हम लोग वी हैव द नॉलेज, हम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम क्यों नहीं सामने? Right. आप समझ रहे हो? अमेजोन के जो फाउंडर हैं ही इज अ साइंटिस्ट, राइट? जेफ बेंजोस, Yeah. इलॉन मस्क, साइंटिस्ट। आप समझ रहे हो? साइंटिस्ट इंडिया में ये ट्रेंड ही नहीं है कि साइंटिस्ट को बिजनेस करना है कि क्यों नहीं, हमेशा मारवाड़ी कर रहा है, ये यही कर रहा है। हम लोग जॉब करने के लिए थोड़ी ना बने। Right. इट्स नॉट लाइक कि जॉब इज बैड, Yes. जॉब खराब चीज़ नहीं है, बट To bring मुझे a revolution, to एग्जैक्टली bring a क्योंकि change. आप हाँ. इनोवेशन कैसे लाओगे सामने? Yeah. चैट जीपीटी के फाउंडर्स क्या हैं? दे आर ऑल साइंटिस्ट, राइट? तो वो कोई एक मारवाड़ी तो नहीं बना सकता ना। हाँ, वो टीम हायर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट मारवाड़ीज आर डूइंग इज बैड, देयर Yeah, yeah. वो भी उनको आपका आता है मतलब है कहने मार्केटिंग का कि करना। स्किल होना एग्जैक्टली जरूरी है मुझे सी for आई formulations. पर्सनली वुड लव इफ समवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड wants to start a skin Yeah, care or a yeah, beauty yeah. care brand because we want people like them जो सही चीज़ लोगों को दे। इसलिए तो इंडिया में अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज आता ही नहीं है कॉस्मेटिक साइंस किसी को। वही 4 फॉर्मुलेशंस का वाइट लेबलिंग हो रहा है। But even if you're not from that background, I would highly recommend to collaborate और make someone as the second founder, है ना, co-founder टाइप का, जिसको कॉस्मेटिक साइंस में एक्सपर्टीज हो, उसका क्वालिफिकेशन हो, Yeah. राइट? Maybe you can do the marketing stuff and he can do or she can do the formulation stuff. Yeah. But आपको चाहिए, So जैसे अगर इसको स्टार्ट अदरवाइज करना यू है. विल एंड अप डूइंग क्या, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के हाँ. पास जाओगे, वो आपको वही चीज़ देगा, वो क्या मतलब है? फिर क्यों बना रहे हो यार? Well, very well said. Um, but lot of people today I see are very passionate about skincare, and they are okay to get into more details. जैसे मैंने देखा कुछ स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं, साउथ में काफ़ी देखे हैं मैंने. वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने किचन से ही बनाए हैं, एंड they have tons of reviews and good reviews, and they're not bought reviews. So I don't know that this is the right way, but like if someone like that feels that I want to start my own skincare brand, kitchen में से This is absolutely wrong. There kitchen is में नहीं बना. GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का है। आप लैब का एक एनवायरनमेंट अलग होता है, Yeah. ठीक है? किचन का एनवायरनमेंट अलग होता है। फूड साइंस एंड कॉस्मेटिक साइंस में डिफरेंस है, ठीक है? पहली बात तो आपको किचन में नहीं बनाना चाहिए, ये तो पता नहीं कहाँ। अभी आयुर्वेदा तक ठीक है क्योंकि आयुर्वेदा में ना बेसिकली देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन एट द मोमेंट इन आयुर्वेदा। बट व्हेन इट्स कम टू कॉस्मेटिक साइंस, फॉर एग्जांपल रेटिनॉल इज देयर, सेरामाइड्स आर देयर, पेप्टाइड्स आर देयर, राइट? Yes. ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाईली रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट्स हैं और स्टैंडर्डाइज्ड हैं,
राइट? फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, Yeah. पैरासिटामोल में जो या फिर कोई भी आप एंटीबायोटिक लेते हो उसका एक पर्टिकुलर डोसेज दिया होता है ना, आप वही डोसेज उसमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी में 500 mg लिखा है तो उसके अंदर 600 होगा Yeah, yeah, या yeah. 400 होगा। तो standardized बट चाहिए आपको. बट व्हेन यू कम टू आयुर्वेदा और एनीथिंग दैट यू मेकिंग इन द किचन, देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? मैं किचन में कुछ बना रहा हूँ, आप भी सेम चीज़ किचन में बना रहे हो, कैन यू गारंटी कि द लेवल ऑफ इंग्रेडिएंट्स विल बी द सेम इन दैट? इम्प्योरिटीज़ किसी It's में hard. ज़्यादा हो सकती हैं, किसी में कम हो सकती हैं। कई लोग अभी जैसे घर पे चीज़ें बनाते हैं, कई लोग एलोवेरा जेल घर पे बनाते हैं, राइट? इन वन ऑफ द पॉडकास्ट ही वाज आस्किंग कि एलोवेरा जेल तो बनाते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन। मैंने बोला हाँ यार, लेकिन मेरे घर में देयर आर 2 पीपल हु हैव एलर्जी विद एलोवेरा। Yeah. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको काम कर रही है वो बाकियों को काम करे। प्लस व्हेन यू मेक द थिंग्स बाय योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग प्योरिफिकेशन of the stuff. So there is a book called as Indian Pharmacopoeia. Okay. Right? Every country has its own book. India has Indian Pharmacopoeia, United States has US Pharmacopoeia, right? So likewise British Pharmacopoeia. तो Pharmacopoeia is nothing but it's a Bible for us. कि इसमें हर एक इंग्रेडिएंट का, जो भी रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट है, उसकी प्योरिफिकेशन करके हाईएस्ट प्योरिटी कैसे लानी है, कैसे उसकी प्योरिटी चेक करनी है, सारे एसेज एंड टेस्ट उसमें होते हैं। इफ़ योर इंग्रेडिएंट क्वालिफाइज देन यू कैन से दैट माई इंग्रेडिएंट इज फलाना फलाना IP, फॉर एग्जाम्पल नाइसिनामाइड IP, दैट इट इज़ ऑफ IP ग्रेड, हाईएस्ट प्योरिटी ग्रेड। सो वो चीज़ हम फॉलो करते हैं। अब आप किचन में कैसे करोगे प्योरिफिकेशन भाई? Yeah. यू कांट डू प्योरिफिकेशन इन किचन। So आपने अगर वो तो काटा, हाँ. घोला, हो गया, तो उससे हो सकता है आपको काम लग जाए, किसी को इरिटेशन हो सकती है, बिकॉज द लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज विल बी वेरी हाई इन दैट। देयर इज नो प्योरिफिकेशन एंड दैट इम्प्योरिटी कैन सेंसिटाइज योर स्किन। सो किचन में बनाना तो आई हाईली अवॉइड। आप स्टैंडर्डाइज्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ छोटे से लैब में, ठीक है, बना सकते हो। लैब अगर नहीं, किसी मैन्युफैक्चरर की लैब में कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, बट घर पे नहीं। कॉस्मेटिक्स एटलीस्ट। So when we choose a lab, suppose, like, can you guide this entrepreneur a little bit that how they can choose a manufacturing lab also? Like, कुछ points जो बिल्कुल red flags हैं, कभी भी नहीं होने चाहिए। कुछ certifications that basic certifications जो हमें देखने चाहिए। और भी कुछ other maybe pricing strategies या other कुछ जो हमें सोचना चाहिए before getting this manufacturing done. कोई MOQs भी होते हैं क्या? हाँ हाँ, MOQ होते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। तो पहले तो देखो, अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो वैसे ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हमारा तो इसलिए बच गया बिकॉज हमने खुद, सो व्हाट वी डिड, वी रेंटेड अ प्लेस, बहुत छोटा सा प्लेस, एंड बेसिकली आई इन्वेस्टेड ओनली 8 to 9 lakhs। Okay. ठीक है, That's a great number to हाँ understand. हाँ, सो ओनली 8 बट बिकॉज मेरे को पता था कैसे बनाते हैं चीज़ें, तो मैं एक बहुत बेसिक सेटअप से भी बना सकता हूँ। सो वी हैड अ वेरी बेसिक सेटअप, अ मैनुअल सेटअप, बट इट वाज लाइक प्रॉपर वो सेटअप ही होता है वो, बट इट्स नॉट ऑटोमेटेड बिकॉज ऑटोमेटेड इज़ वेरी कॉस्टली। तो बेसिक सेटअप मैं लाया था, एंड वी इन्वेस्टेड इन रेंटेड प्लेस, नॉट अपार्टमेंट प्लेस, और वहाँ पे हमने वो बनाना शुरू किया था, एंड प्रॉपर GMP वगैरह फॉलो किया था। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब, क्योंकि उसमें आपको कंट्रोल रहेगा, आप चाहे तो 100 प्रोडक्ट भी बना सकते हो, आप 200 भी बना सकते हो, आपको मार्केट टेस्ट करनी है। इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको पता भी नहीं यार, ज़्यादा पैसा लगा रहे, ROI आया ना आए। बट व्हेन यू गो टू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर ना, उनका MOQ होते हैं, 5,000 मिनिमम बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे। अब उनसे आप कितना कर लोगे? और 5,000 अगर आपके मार्केट में चले, नहीं चले, फिर तो आपका पैसा तो गया। सो जब आप खुद का छोटा सा ही सही 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके खुद का ही करेंगे ना जब, तो उससे आपका क्वालिटी पे भी कंट्रोल रहेगा, क्वांटिटी पे भी कंट्रोल रहेगा आपका। और आई थिंक आप फीडबैक भी ज़्यादा ले हाँ, सकते हो और फीडबैक ज़्यादा ले इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सकते हमने हो। स्टार्टिंग में जब किया था, तो हमने तो मुश्किल से 50 प्रोडक्ट बनाए थे, मतलब 50 यूनिट्स बेसिकली, बिकॉज हमें नहीं पता था कि क्या रिपरकशन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो धीरे 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 हुआ, बट एटलीस्ट फ्रॉम डे वन वी वर नॉट कि हाँ वो पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने सब एकदम कंट्रोल्ड वे में किया, सब हमारे हाथ में कंट्रोल था डे वन से, बिकॉज ऑफ द R&D और मैन्युफैक्चरिंग हमारी थी, छोटी ही सही पर थी हमारी। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पैसा है हाँ और नॉलेज नहीं है, हाँ, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं, नॉलेज, क्योंकि अब हमारा, मेजॉरिटी ऐसे लोग होंगे हाँ, जो क्योंकि नहीं हमें इतना नॉलेज था एजुकेशनल। तो वी वर एबल टू डू इट। यस यस अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो थर्ड पार्टी, या तो फिर आप, एज आई सेड, यू कैन पार्टनर विद समवन हु हैज़ नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, मे बी दैट पर्सन विल बी एबल टू हेल्प यू। अदरवाइज यू हैव टू डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स, और उनके MOQs होते हैं यार। तो थोड़ा पैसा तो आपको चाहिए। आई डोंट थिंक सो, मैं जब गया था, मुझे उन्होंने उस समय, आज से 4 साल पहले, उन्होंने मुझे 5,000 यूनिट्स बोले थे। आई डोंट थिंक सो अभी, अब तो 10,000 15,000 हो गया होगा। अच्छा। हाँ, वो तो बढ़ जाता है क्योंकि उनका, या मुझे फिर तो ऐसा प्राइसिंग बढ़ जाता है उनका पर यूनिट का, कुछ तो वो करते हैं।
तो वो चीज़ में थोड़ा-सा तो बजट आपको लेके चलना पड़ेगा और रिस्क लेके चलना पड़ेगा कि चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो गया पैसा। तो जितने भी सारे ये स्किन केयर ब्रांड्स एंड दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, कोई टेस्टिंग नहीं, मतलब देयर इज नो वे टू टेस्ट इट अ लिटिल से तो ऑफलाइन नहीं, जाके नहीं, या वो बेसिकली क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होता है ना, हाँ। वो ही बनाता है, हम्म। वो ही लैब टेस्टिंग्स भी करवाता है। अगर करवाना चाहे आप किसी और लैब से भी करा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा। अदरवाइज यू कैन आस्क देम कि भाई तुम ही कर लो। इफ़ यू ट्रस्ट देम देन दे कैन डू द सेम थिंग। अदरवाइज देयर आर मैनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो गवर्नमेंट एफिलेटेड होती हैं, उनसे भी आप करा सकते हो। उसमें वो टेस्टिंग करते हैं कि कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही, यस, यस। सेंसिटाइजेशन तो नहीं हो रही, कोई हैवी मेटल्स का इम्प्योरिटीज़ तो इसमें नहीं है, ठीक है, लेड मर्करी का इम्प्योरिटीज़ तो नहीं, वो सब टेस्ट होते हैं। अब मार्केट टेस्टिंग के कस्टमर को अच्छा मार्केट भी लग रहा है, समझ भी आ रहा है, अगर से लाइक आई बॉट द ग्रीन क्ले मास्क द अदर डे एंड आई यूज्ड इट, अब मुझे नहीं समझ आ रहा एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, सो हाउ डज अ ब्रांड टेक इट, लाइक बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सी बेसिकली द ट्रूथ इज़ कि जब आप थर्ड पार्टी से कराते हो तो मार्केट कस्टमर टेस्टिंग तो कहाँ से होगी। वो तो बोल रहे भाई हम आपके लिए बनाएंगे, हम इसकी टेस्टिंग कर देंगे, इन द सेंस कि वही मतलब जो भी आपने बनाया है सेंसिटिव तो नहीं है या इसमें हाँ, कोई इम्प्योरिटीज़ साइंटिफिक तो नहीं है, टेस्टिंग कर वो लेगा टेस्टिंग कर वो, लेंगे। हाँ। लेकिन कस्टमर टेस्टिंग तो नहीं हो सकती बिकॉज वो उनका काम नहीं है। वो आपको फिर बना के दे देंगे, देन यू हैव टू लॉन्च अ ब्रांड एंड देन सी। तो ये उस लेवल का इंडिया में नहीं होता है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है ऐसे केस में? देखो, अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पे जा रहे हो तो आई थिंक अगर वो डिपेंड करता है, अगर आप कितने एसक्यूज़ लेके आना चाहते हो, राइट? अगर आपका 3-4 जैसे एसक्यूज़ हैं। सेंसिबल एसकेयू लॉन्च क्या रहेगा फॉर? सी फॉर आई थिंक यू शुड गो विद वन कैटेगरी एट अ टाइम। अच्छा। डू नॉट गो विद सीरम्स, सनस्क्रीन भी ले आऊँगा, सीरम भी ले आऊँगा, मॉइस्चराइज़र भी ले आऊँगा, वो मत करो। फिर So like आपकी only use moisturizer, only get one category वन before. कैटेगरी आपको अगर लगता है कि यू थिंक दैट इन मार्केट देयर इज़ अ गैप इन दिस कैटेगरी, हाँ। देन वो कैटेगरी की चीज़ को आप पकड़ो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है यार ये मॉइस्चराइजर्स उतने ज़्यादा इंडिया में उस लेवल के नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें तो मिसिंग है उसमें, सो आई विल ब्रिंग अ सेट ऑफ मॉइस्चराइजर जिसमें वो चीज़ हो। आप समझ रहे हो? तो एक कैटेगरी को लेके आप आगे बढ़ो, देन यू एक्सपैंड। अगर सब जगह हाथ मारोगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। और उस कैटेगरी में आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स लाओ, दो उससे से लॉन्च तीन करो। प्रोडक्ट्स तो पूरे वेबसाइट पे अगर 2 से 3 प्रोडक्ट ही दिखते हैं, स्टार्टिंग में तो 2 से 3 ही इट होंगे। वर्क्स वो आउट। सी अभी इंडिया में क्या है ना, हमें आप मुझसे सब निकलवाओगे आज। नहीं, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है। इंडिया में क्या है ना, जो कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर का जो गेम है ना, हम्म। वो मोस्टली रिच लोगों का गेम है, अच्छा। ठीक है? इनके पास होता है पैसा, इनके पास होती है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डे वन, ठीक है? तो फ्रॉम डे वन दे डू नॉट गिव अ डैम अबाउट प्रॉफिट। उनको ये है भाई मेरे को फटाफट पहले फैलाना है, बर्न करना है, तीसरे चौथे साल से प्रॉफिट बनाना शुरू होगा। ओके। हाँ, हाँ। स्किन केयर में, कॉस्मेटिक्स में मेकिंग प्रॉफिट इज़ अ बिग थिंग। मैं इसलिए तो सी नाउअडेज़, सी वी आर आल्सो नाउअडेज़ इन टॉक्स विद इन्वेस्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर अमेज्ड कि ये ब्रांड इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में बूटस्ट्रैप्ड और प्रॉफिटेबल कैसे है। हम्म। So we have an EBITDA of around 25 to 30% ओके। in cosmetics, हम्म। which is very difficult. प्रॉफिट होना ही नहीं होता, EBITDA कहाँ से हाँ, इतना वही हो वही। जाएगा। हाँ। सो दैट्स द थिंग, क्योंकि वो गेम जो जो लोग खेलते हैं उन्होंने ना प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, उन्हें उन्हें मार्केटिंग से लेना देना है। इंडिया में बस ये है कि फटाफट बेचो, किसी को नहीं लेना कि प्रोडक्ट काम कर रहा है, कस्टमर का इशू सॉर्ट आउट हो रहा है, नहीं, आप बेच कैसे रहो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इंडिया वो गेम है। तो ये रिच ही रिच लोगों का गेम है। इसमें फिर 2 लोग आते हैं साइंस बैकग्राउंड से। अच्छा। ठीक है? तो हाँ, इसलिए बिकॉज़ फ्रॉम डे वन हमें पता था अगर प्रोडक्ट हमने हाँ। अच्छे से कर दिया ना हिट, सो रेस्ट इज़ हिस्ट्री देन। बिकॉज़ फॉर मी जितना भी मैंने अब तक सीखा है मार्केटिंग में, इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ डैम गुड ना, then you don't need to spend much in marketing. People will automatically organically come back. या। नहीं तो क्या होता है, पहले तो आप बेच दोगे मार्केटिंग के एक्सपर्टीज लेके, लेकिन अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो बंदा आपके पास आएगा ही नहीं, आपको लॉयल कस्टमर्स मिलेंगे ही नहीं। तो बट आपने हमारे कैसे स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट कैटेगरी आपका था? इट्स इंटरेस्टिंग टू नो बिकॉज अगर कोई आपके सिमिलर बैकग्राउंड से है एंड वो रिलेट कर सकता है, तो व्हाट इज द राइट number of products they should launch with, सी बेसिकली गो विद अ or कैटेगरी does विद it even एटलीस्ट, matter? इट मैटर्स इफ़ यू रियली डू Hmm. नॉट कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। Yeah. तो हमने जब पहला अपना लॉन्च किया था, कैटेगरी वही थी हमारा मॉइस्चराइजर्स की, तो वो हिट हो गया। हुआ कैसे कि जब हमने लॉन्च किया उसके, ऑफ कोर्स एकदम से हिट नहीं होता है, वो हाँ। टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं, 3-4 महीना।
बट देन देयर वर सम इन्फ्लुएंसर्स हु केम टू नो, जो यूज़ करते रहते हैं, तो किसी एक को बहुत अच्छा लगा, तो उसने बोला "यार, ये कोई ब्रांड है, ये वेरी नाइस मॉइस्चराइजर दे हैव, यू मस्ट ट्राई"। तो वो ट्रेंड बन गया एक। तो बैरियर रिलीफ हमारा था सेरामाइड मॉइस्चराइजर, व्हिच आई सेड वी आर द फर्स्ट ब्रांड इन इंडिया हु बॉट दिस Yes. सेरामाइड मॉइस्चराइजर्स इन 2021। Yeah, yeah, तो एंड yeah. देन रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी फिर ब्रांड्स ने कॉपी करना उसे शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया में यही होता है, कोई एक बनाएगा दूसरा कॉपी करेगा। तो वो चीज़ बहुत चली। तो अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होता, तो ये क्या होता? बिकॉज मार्केटिंग का तो बजट हमारे पास था ही नहीं। तो वंस वी स्टार्टेड गेटिंग दैट फर्स्ट ट्रैक्शन, तो वो जो मनी होता था हम इन्वेस्ट करते थे उसे उसे मार्केटिंग में, उसमें हम मेटा एड्स और गूगल एड्स चलाते थे। एंड फॉर अस फ्रॉम डे वन वी वर हैविंग दिस माइंडसेट कि रोआस एटलीस्ट आपको 3 रखना है, कैन नॉट गो, बिकॉज बेसिकली इन कॉस्मेटिक्स ऑल्सो द रोआस इज अराउंड 1, क्योंकि Yeah. इन कंपनीज इन्वेस्ट हेविली इन मार्केटिंग। मैं एज आई सेड दे डू नॉट गिव अ So it's डैम very अबाउट प्रॉफिट। difficult It is to very compete difficult. with It is giants, right? exactly because Hmm. they don't give a damn about profit. Yeah. So it's very difficult. So अगर आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, Hmm. तो भी आपको उतना जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि Yeah. आपको चाहिए रोआस 3। अगला बंदा वो एक रोआस में भी खुश है, तो उसकी एड ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि फेसबुक इज अर्निंग मोर थ्रू दैट पर्सन। Yeah. इवन टुडे वी डू लाइक 3 to 4, मैक्सिमम 3 or 4 इन्फ्लुएंसर्स, वो भी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े, बिकॉज बड़े बड़े को तो बजट दे चार्ज वेरी हाई बाबा। Yeah. Yeah. इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को जो भी 3 4 है उन्हें बोलते हैं अगर वो पसंद आया था प्रोडक्ट तो आप इस पे बना सकते हैं, तो दे लाइक जेन्युइनली एंड दे पोस्ट इट। अच्छा. तो ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग हैवी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि हज़ार हज़ार इन्फ्लुएंसर्स को भेज दिया, वो हमसे नहीं होता। हमारा ये है कि प्रोडक्ट अगर अच्छा है पीपल विल बाय। So ऐसा कुछ Instagram moment आया आपका which really हाँ, वो changed? एकदम पूरा एक ट्रेंड सेट हो गया, बिकॉज इंडिया हाँ. में देयर वाज समथिंग न्यू, Yeah. दैट देयर इज अ ब्रांड हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्किन बैरियर एंड सेंसिटिव स्किन। Okay. इस सेरामाइड When मॉइस्चराइजर did it सेरामाइड का exactly pick up on Instagram? If you can. इट्स इन मई जून, जून आई थिंक, जून और जुलाई July 2021। 2021. सो लॉन्च हुआ था हमारा ब्रांड इन मार्च अप्रैल, तो वही 3 4 महीने लगे थे, बट वो जो पिक हुआ ना, और आपको मैं मज़े की बताता हूँ, सेरामाइड्स वॉज नॉट रजिस्टर्ड इन दी FDA इन इंडिया। अच्छा. वी वर द फर्स्ट हु रजिस्टर्ड इट, What क्योंकि is ceramides? वो भी बताना ceramides मुझे. ingredients मतलब basically अच्छा. they are ingredients which are very good for the skin, अच्छा. right? Basically ceramides are naturally present in your skin, right? हाँ. In the outermost layer, Okay. cholesterol and free fatty acids। तो basically क्या होता है कि जैसे ये आपका ये, आप ये समझिए कि जो ब्रिक और जो आपका ये जो सीमेंट है, हाँ, हाँ. राइट? तो इसमें क्या होता है, ब्रिक जो होती है वो आपके स्किन के सेल्स होते हैं, जो सीमेंट होता है विच कीप्स द ब्रिक्स इंटैक्ट, दैट इज हाँ. सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स, अच्छा. विच आर ऑर्गेनिकली प्रेजेंट, नॉर्मली प्रेजेंट इन योर स्किन। अब होता क्या है, द मोर यू एज या स्किन बैरियर आपकी डैमेज हो रही है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसमें सेरामाइड्स का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो कम होना शुरू हो जाता है, और आपकी स्किन थोड़ी सी वो मतलब ख़राब होने लग जाती है, Right. सेंसिटिव होने लग जाती है, और उससे आपको बहुत सारे स्किन इश्यूज हो सकते हैं, राइट? तो जब आप अलग से यही सेम रेशियो कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड, सेरामाइड्स का बाहर से देते हो, तो वो फिर से आपके स्किन बैरियर को हेल्दी और स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनाना शुरू कर देती है, So you were the राइट? first one who registered. हाँ, तो उस समय अरे एफडीए में पता ही नहीं था, वो बोल रहे थे ये क्या होता है, मैंने ये होता है वही, इसका हमने हाँ. बहुत सारे फिर पेपर्स वगैरह उन्हें सबमिट करे, एंड देन इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 6 months इन 2020 वी रजिस्टर्ड। वो 6 months लगे रजिस्टर होने में, मानने को राजी नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा. तो क्योंकि एनीथिंग इफ़ यू वांट टू ऐड इन ए, फॉर एग्जांपल कोई भी नया इंग्रेडिएंट मार्केट में लाना है तो आपको एफडीए में उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कोई बिना रजिस्टर करे ला रहा है तो दैट्स रॉन्ग। Yeah. तो वो हमने करा था, बिकॉज ऑफ अस ओनली सेरामाइड्स आर, मतलब बाकी सब लोग यूज़ कर पा रहे हैं उन्हें। So किसी को भी ऐसा कुछ नया लॉन्च करना है तो it takes. इंग्रेडिएंट बेस्ड। हाँ, ingredient based. You हाँ, अगर need कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है approvals. जो जो हमारे एफडीए में, इंडिया के एफडीए में रजिस्टर्ड नहीं है, सो यू हैव टू रजिस्टर इट फर्स्ट, एंड फॉर दैट यू नीड टू शो रिजल्ट्स एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ऐसे नहीं कि हमारा मन के उन्होंने डाल दिया, आपको पूरा प्रूफ बैक, पूरा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उनको। सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होता, देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक प्रूफ ऑफ द इंग्रेडिएंट बीइंग वर्थ। Rahul, you told me that you started with 8 to 10 lakh rupees, right? इसके अलावा भी और कुछ इन्वेस्टमेंट है जो मुझे कंसिडर करनी चाहिए अगर सिमिलर लाइंस पे मैं एक स्किन केयर ब्रांड बनाती हूँ? सी सबसे पहले तो अगर आपको स्किन केयर ब्रांड बनाना है, पहले तो वो कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, वो तो छोट नॉमिनल गवर्नमेंट फीस होती है। हाँ. देन इफ़ यू वांट टू हैव योर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, Yeah. राइट? सो यू नीड टू फर्स्ट मेक दैट सेटअप, ठीक है? रेंटेड में भी कर सकते हैं, जैसे भी है। जितना भी मिनिमम कॉस्ट में आप बना सकते हैं वो सेटअप,
विद बेसिक इक्विपमेंट्स। उसको फिर आपको रेंटेड एरिया को जो सेटअप आपने बनाया है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है आपको फॉर गेटिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। सो दैट्स अ डिफरेंट, दैट टेक्स अराउंड 3 to 4 months, क्योंकि आप अप्लाई करोगे, फिर एक ड्रग इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्शन होती है, वो सब चीज़ें होती हैं। सो अगर आपका सब कुछ टाइमली मैनर पे हो रहा है तो विद इन 1 year यू कैन लॉन्च, कि आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग की जगह भी ले ली, आपने इंस्पेक्शन भी करा लिया, आपको लाइसेंस भी मिल गया। बट मेरे केस में इट टुक अ लॉट, बट अगर सब कुछ सही चलता है तो 1 साल में हो सकता है, फ्रॉम प्रोडक्ट टिल लाइसेंस ये हो सकता है। और अगर तो बाहर, सॉरी, हाँ, गो अहेड। हाँ, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा नहीं लगता, मतलब आपका गवर्नमेंट फीस इज़ वेरी नॉमिनल। वो डिपेंडिंग ऑन कितनी फॉर्मुलेशंस आप रजिस्टर करा रहे हो उतना आपको पेमेंट करना होता है, इट्स नॉट वेरी हाई। बेसिक जो आप मेन जो आपका लगेगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बनाने में ही लगेगा। तो मेरा जो लगा था वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में ही लगा था, गवर्नमेंट फीस इज़ वेरी नॉमिनल। बट हाँ, अगर आप थर्ड पार्टी पे जाते हो देन इट डिपेंड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टी कि उनका एमओक्यू कितना है, उनका पर पीस प्राइस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा खर्चा आपका। ओके, बट यूजुअली अगर किसी को भी स्टार्ट करना है स्किन केयर, यू थिंक दे नीड बिग मनी, इज इट? If they want to do it from third party manufacturing they must, because if their products do not hit then Yeah, they should be able to take that as well, plunge कि also, हाँ कि okay. क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं था फेल होने का, तो हम कोई रिस्क ले नहीं सकते थे, तो हमारे लिए प्रोडक्ट ही सब कुछ था, इसलिए हम सब कुछ जितना कंट्रोल हो सकता था सारा कंट्रोल हमने अपने पास ही रखा। बट इफ़ यू डू नॉट हैव दैट बैकग्राउंड एंड यू थिंक कि थर्ड पार्टी ही मुझे कराना है, तो उतना तो बजट आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे स्मार्ट बनना है, इन अ वे आई वांट टू फाइंड द राइट थर्ड पार्टी। सो यू हैव टोल्ड मी ऑलरेडी द रेड फ्लैग्स अराउंड इट, बट कोई टिप्स मुझे आप दे सकते हो कि अगर थर्ड पार्टी में जाना है तो मैं ये सब देखूं, and उनका maybe some certification, हाँ something that supports that they are doing a clean job? हाँ, उनका आप ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चेक कर सकते हो कि वो Okay. अपडेटेड है, अप टू डेट है कि नहीं है, कई तो ऐसे ही चलते अच्छा। हैं। जीएमपी सर्टिफिकेशंस उनके देखो, लेटेस्ट जीएमपी सर्टिफिकेट, गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स जो है कि नहीं। देन यू पर्सनली विजिट उनका Yeah. जो लैब्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पर्सनली देखो। सर्टिफिकेट तो वैसे भी हो सर्टिफिकेट्स का जाते हैं, कोई इतना वैल्यू लेकिन नहीं है लेकिन यार। जब आप खुद जाके देखोगे ना, दैट Yeah. टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये सच में अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि आपको देखने से पता चल जाएगा। तो वो आपको पर्सनली विज़िट करना पड़ेगा, और उसके बाद उनके जो फाउंडर्स हैं, जो भी उनके ओनर्स हैं, उनसे आप बात करो। उनके जितने भी बाकी ब्रांड्स के लिए उन्होंने अगर कुछ बनाया है तो हाँ। आप वो पता होना चाहिए। अगर मान लो कोई जो आपको पता है कि ये ब्रांड तो ऐसे ही है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है और वो बना रहे हैं, तो फिर आपका ही क्या ही बनाएँगे वो। So you think अगर वो बताता है कि हाँ, we are making products for this brand which is विच decent, विच इज़ डिसेंट एंड reliable, गुड। you think you can use the manufacturing unit? हाँ, मतलब हाँ, अगर उसका जो बैकग्राउंड है, जो ब्रांड्स के लिए उसने बनाया है, वो अच्छे ब्रांड्स, अच्छा मतलब इफ़ेक्टिव, नॉट मार्केटिंग बेस्ड, बट एफिकेसी बेस्ड, वो अच्छे ब्रांड्स हैं, तो और उसका जो जीएमपी सर्टिफिकेशन सब कुछ ऑन पॉइंट है, और वो जब आप पर्सनली विजिट कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन, और प्रॉपर प्रोसीजर्स को वो Yeah. सब फॉलो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, देन यू कैन गो विद देम। बट उसमें फिर वही है कि उनका एमओक्यू, बिकॉज़ जो इतना कुछ मेंटेन करते हैं, उनका उनका एमओक्यू भी MOQs थोड़ा-सा हाई रहेगा। ठीक-ठाक रहता है। अच्छा। तो जितना Yeah. गुण उतना मीठा होता है ना। हाँ, समझिए। What takes the major cost of creating a skincare brand? R&D, packaging, or maybe something else? डिपेंड्स, आई मीन फॉर अस आर-एन-डी वाज़ नॉट अ मेजर कॉस्ट बिकॉज़ वी आर एक्सपर्ट इन आर-एन-डी। Yeah. बट जो एक्सपर्ट नहीं है, वो Hmm. मल्टीपल ट्रायल्स करवाएगा, Yeah. राइट? तो उसमें टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी लगेगी। Hmm. सो फॉर अस इट वाज़ नॉट आर-एन-डी बिकॉज़ दैट इज़ आवर फोर्टे। बट येस, जब आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट अच्छा खासा होता है, बिकॉज एज आई सेड कि इंग्रेडिएंट्स का भी एक लेवल होता है, आईपी, देन द लोअर लेवल इज़ द कॉस्मेटिक, देन लोअर अच्छा। लेवल इज़ द फूड ग्रेड, ऐसा Okay. होता है। तो हम जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली दे आर ईयू बेस्ड कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज हैं, जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के इंग्रेडिएंट्स बनाती है, बहुत हाईएस्ट प्योरिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो थोड़े महंगे होते हैं बेसिकली वो। अच्छा। तो अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाना है और अच्छे इंग्रेडिएंट डालने हैं, थोड़े महंगा तो आपको पड़ेगा वो इंग्रेडिएंट, तो वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, इफ़ यू आर डूइंग आर-एन-डी इन दैट लेवल। Yeah. अगर आपको एकदम बेसिक सा बनाना है, ठीक ठाक इंग्रेडिएंट के साथ, जिसका भाई ठीक है सस्ते में है, तो आर-एन-डी उतना महंगा नहीं पड़ेगा, मे बी ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकता है, बट वो है। तो क्वालिटी भी डिपेंड करता है किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना रहे हो। बट मार्केटिंग विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली थिंग Okay. इन इंडिया। Yeah. या क्योंकि स्टार्टिंग में तो एज आई सेड कि कितना मार्क परसेंटेज?
हाँ प्लीज। मार्केटिंग यार, परसेंटेज वाइज तो मेजर चंक मार्केटिंग में ही जाता है, क्योंकि अच्छा। इतना कंपटीशन हो गया है। हाँ, क्योंकि अब आप देखो ना, अब आपने बहुत अच्छा, आपका प्रोडक्ट है, आपने एक दुकान खोली है, आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कपड़ा हो गया या कोई भी मिठाई की दुकान होगी, बेस्ट चीज़ बनाते हो, आपको पता है ना बेस्ट बनाते हो, लोगों को कैसे पता चलेगा? फॉर दैट यू नीड टू डू मार्केटिंग। देन देर इज़ योर कॉम्पिटिटर जो पिछले 10 साल से है और उसके पूरे कनेक्शंस हैं, वो जिस लेवल की मार्केटिंग कर सकता है, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप तो आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ी विजिबिलिटी तो मिले मुझे। वो अच्छे प्रोडक्ट के बेस पे नहीं मिल सकती। तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हमने भी किया, लेकिन वी केप्ट इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू, मतलब फेसबुक, इंस्टा, वो जो मेटा एड्स होती हैं, गूगल एड्स जो होती हैं, और उसमें भी हमने ये था कि भाई हमारा मिनिमम 3 का रोआस होना चाहिए, नहीं तो। How did you crack that 3 ROAS? Because as you said, mostly लोग एक ही कर पाते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ ना, सो आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ फार्मा हाँ. एंड न्यूरोसाइंस, सो आई डिड माई सम ऑफ द वर्क इन एआई एज वेल। अच्छा. सो आई यूज्ड टू डू ब्रेन मैपिंग एंड सब कुछ इन सिलिको, ये सब तो था, तो आई नो हाउ एआई वर्क्स। तो मैंने वेबसाइट पूरी मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में। अच्छा. उसके बाद एड्स भी मैंने ही चलाई थी। Okay. हाँ, अभी भी मैं अपने टीम को मैं ही गाइड करता हूँ कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो। तो आई नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी बेसिकली। अच्छा. प्लस बिकॉज मैं आई नो द फॉर्मुलेशन साइंस एज वेल, और मुझे पता है कंज्यूमर को चाहिए क्या। तो उस हिसाब से हमारी टारगेटिंग भी उस हिसाब से होती थी। आप समझ रहे हो? जैसे मेटा एड्स होती हैं, उसमें टारगेट्स होते हैं, बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट्स होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे और लेमैन लैंग्वेज में समझाओ, सो दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ एड्स वर्क. काफी लोग पहले तो एक ट्रेंड था, बूस्ट कर देते थे. हाँ हाँ, अब तो बूस्ट इज ऑब्वियसली नॉट गुड। एवरीबडी इज अवेयर कि बूस्ट नहीं करना है, वी हैव टू run proper ads, but a lot of people still don't know how to run. They usually hire an agency. एजेंसी तो हायर ही नहीं करनी चाहिए। Everyone has मैं a बड़ा different परेशान हूँ। opinion, हाँ. नहीं नहीं नहीं, पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ, इट्स बेटर टू हैव एन इन हाउस Yeah. टीम। भाई इतना, सो इन द मिडिल, मतलब मेरे पे इतना काम आ गया था, तो बिकॉज बिगिनिंग में तो आपके पास टाइम होता है, चलो फॉर्मुलेशन बना ली, आज मैं थोड़ा सा मार्केटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा ऐड चला देता हूँ, And you have वेबसाइट to सेटअप हो also गया। be sensible and frugal, right? हाँ, तो बट व्हेन योर कंपनी ग्रोज, लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपन, तो वो ज़्यादा हो जा रहा था, ओवरवेलमिंग। तो आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट टू अ थर्ड पार्टी या कोई मार्केटिंग एजेंसी। उन्होंने जो रोआस डिप किया था, आई यूज्ड टू गेट अ रोआस ऑफ 4, उन्होंने डिप करके 2 से नीचे ले गए, 1.5 टू 2। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम ये क्या कर रहे हो? बोला सर स्केलिंग में तो नीचे होगा। मैंने, हाँ नीचे होगा, बट इतना नीचे तो मत करो, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी, इट्स नॉट अ Yeah. वीसी फंडेड कंपनी की फूको पैसा। Yes. तो दे सेड कि सर ये तो स्टैंडर्ड है, 1.5 कॉस्मेटिक में। मैंने बोला ये स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। देन आई वेंट टू अनदर एजेंसी, वो भी सेम। देन आई केम टू नो थ्रू, मतलब इतना ये सब लॉस करके थोड़ा सा, हाँ. कि ये सही चीज़ नहीं है। देन हमने बोला नहीं, तो इन हाउस वी हायर्ड 2-3 guys and I guide them and then they do it. They are technically they are good, they just need guidance. Okay. वो मैं करता हूँ। बट बेसिकली अगर किसी को शुरू करना है ना, तो हमेशा एड मैनेजर से, जो मेटा का एड मैनेजर होता है उसके Yes. थ्रू करे, बूस्ट वूस्ट ना करे हाँ कोई भी हाँ. चीज़ को। और बेसिकली स्टार्टिंग में आप कभी भी टारगेटिंग मत करो डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ ब्यूटी स्किन केयर ब्रांड, या आपको Yeah. शुरू करना है और आपके पास प्रोडक्ट एंड यू वांट टू शो योर एड्स टू द रेलेवेंट पीपल, सो जस्ट टेक द एज ग्रुप। अगर अच्छा. आपको लगता है आपका थोड़ा जेनजी स्टाइल प्रोडक्ट है, तो आप जेनजी को टारगेट करो। ये नहीं कि आप 40 प्लस को भी टारगेट किए जा रहे हो, तो वो कोई लॉजिक तो बन एज भी वाज सकता वन है, ऑफ द बन भी फेज. सकता है हाँ. अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो मतलब पेरेंट्स भी चाहे अपने बच्चों के लिए, राइट। अगर किड्स प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स वो मदर्स को टारगेट करेंगे, Yeah. वैसा भी होता है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली यू शुड नो कि कौन सी एज ग्रुप है जो आपके प्रोडक्ट के लिए एकदम ठीक है। आपका क्या था एज ग्रुप? मेरा तो सी, फॉर अस मोस्टली फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 44 इट वर्क्स फॉर द मॉइस्चराइजर्स, फॉर सेरेमाइड एनीथिंग। मॉइस्चराइजर. मतलब हमारा ब्रांड में वो ये एक एज ग्रुप है, ये इसको पसंद करते हैं, हमने देख लिया एनालिसिस करके। अच्छा. द हाईएस्ट इज द पीपल हु आर अर्निंग एंड हु वांट टू हैव एक लाइफस्टाइल। जैसे नॉर्मली 22 टू 34 रेंज के जो लोग होते हैं ना, मोस्टली दे आर अर्निंग, क्योंकि अभी 18 में भी क्या होता है, उनको चाहिए बट वो अर्निंग नहीं होता है, तो दे Yes. डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। राइट. तो बट दे मतलब वो करते थे कमेंट एंड दे वांटेड दिस, बट दे ऑलवेज वेट फॉर द ऑफर्स। बट मेजोरिटी ऑफ द जो चंक है फ्रॉम 18 टू 44 इज 23 टू 34। जो ज़्यादा ऑडियंस जो वेट नहीं करती कूपन कोड और इसका, वो दे जस्ट वांट अ गुड या. स्किन केयर प्रोडक्ट एंड अ या. गुड या. स्किन।
प्रेजेंटेबल दिखना आजकल बहुत ज़रूरी है, तो वो Yes. सब चीज़ें। तो ये था, तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ एज फैक्टर Age रखा, एंड उसमें हमने कोई जेंडर वेंडर भी नहीं किया, बिकॉज इट्स एन एआई, यू हैव टू गिव इट सम टाइम टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, बिकॉज आप जब भी एक एड मैनेजर चलाते हो ना, Hmm. इट्स वेरी न्यू Yeah. फॉर यू, ठीक है, तो उसको लर्निंग में टाइम लगता है, Hmm. राइट। तो जब आप चलाओगे, अगर आप उसमें पहले ही अच्छा इंटरेस्टेड इन स्किन केयर उनको दिखाओ सिर्फ, या इंटरेस्टेड इन सनस्क्रीन या मॉइस्चर उनको दिखाओ, तो वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि वो लर्न नहीं कर पाएगा आपका जो अकाउंट है, अच्छा। राइट। तो इसलिए उसको पहले खुला छोड़ दो, बस आप एज अपना डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मेरा एज 18 Good टू tip. 24 या 34 या जो भी आपका है, एंड डू नॉट डिसाइड जेंडर। हाँ, अगर आपका जेंडर स्पेसिफिक है, इफ़ योर क्लोथिंग ब्रांड लॉन्जरे टाइप का है आपका, तो ऑफ कोर्स ही बात है, Hmm. आपको ऐसा नहीं है एक दिन में भी रिजल्ट मिल सकता है, 10 दिन 7 दिन भी लग सकते हैं। How You long will wait. it take you? Normally, see, if you run any ad, you should wait at least for 6 to 7 days. Okay. Maybe it can happen कि वो एक दिन अच्छा रिजल्ट दे, एक दिन खराब रिजल्ट दे, कि मतलब एक दिन तो 10 परचेज आ गई, एक दिन एक भी परचेज नहीं आई। ये नहीं कि जिस दिन नहीं आई उसने आप बंद कर दिया आपने। सो वो एक लर्निंग फेज होता है। सो वंस इट कम्स आउट ऑफ द लर्निंग फेज, देन यू कैन डू सम काइंड ऑफ चेंजेस। पर Yeah. उसे एटलीस्ट हफ्ता भर लर्निंग फेज का दो, उसे सीखने तो दो, आपके लिए राइट ऑडियंस वो ढूंढेगा, ठीक है। Hmm. जब आपका अकाउंट मैच्योर होता चला Yeah. जाता है, तब आप नई नई एड्स और चलाते हो कि मैंने एक अच्छा, मेरे वेबसाइट विजिटर्स आ रहे हैं, अब मुझे रीटारगेट करना है, तो आप रीटारगेटिंग की एक ऐड चलाते हो, राइट। अच्छा, अब मैं इंटरेस्ट बेस्ड कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, जिसको स्किन केयर में इंटरेस्ट है इनको दिखे। अब मैं जेंडर बेस्ड कर रहा हूँ कि वुमेन को ये वाली ऐड दिखे सिर्फ, राइट। Okay. तो वो बाद में आती हैं स्पेसिफिकेशंस, बट पहले आपको एक जनरलाइज रखना होता है, लेट द एल्गोरिथम लर्न